हु इज दिस जेंटलमैन? एसडीओ कोलार। आपको जेल जाना है क्या यहाँ से? कहाँ है ये आदेश 3/6/19 का? सर फाइल में है सर। तो फाइल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? आप लोग मजाक समझते हैं कोर्ट को? कहाँ है आपकी फाइल? नीचे क्यों है? जेल जाना है आपको यहाँ से? Should I draw a contempt proceeding against you? सॉरी से क्या होगा? लिखिए 25,000 रुपए कॉस्ट जमा कराइए। हाईकोर्ट लीगल कॉस्ट भी डिपॉजिटेड इन हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। ये आप लोगों ने मजाक समझ रखा है कोर्ट को, बिल्कुल से टाइम वेस्ट करते हैं आप। Copy of this order be sent to the chief secretary for taking action against the sub-divisional officer for wasting the time of the court and not producing the complete 16/12/2024. Today we have complied, my lord. For delay, I am tendering apology, my lord. We have filed. हाँ दिखाई You did. Extra. मैंने WhatsApp पे भेजा था। किसका एफिडेविट है ये? एसडीओ कोलार। क्या कहते हैं वो? In compliance of last order, my lord, the additional commissioner has matter remitted to the SDO for fresh consideration, my lord. हाँ फिर क्या हुआ? कुछ विलम्ब हुआ था, 3 जनवरी को आदेश पारित किया साहब। हाँ फिर और इसमें और कलेक्टर को एक टीम निर्देश तहसीलदार को निर्देशित किया है कि if found the any encroachment then removed within stipulated period, my lord. In compliance of that order, my lord, तहसीलदार कोलार is also। एक से रुक जाइए, ये कहाँ से लिखा है ये आपने? Who was declared it as ultra virus? पैरा 8 पढ़िएगा जरा एफिडेविट का। पढ़िए पैरा 8 पढ़िए आपके एफिडेविट का। एक्स्ट्रा नहीं साहब। क्यों नहीं है एक्स्ट्रा? सरकार बहुत गरीब है क्या आपकी? अभी यहाँ सुबह ही आए। तो फिर कहाँ है आपका अधिकारी? कॉपी नहीं करा सकते वो? पढ़िए पैरा 8। Where is this order dated 3/6/19? 3/6/19 का आदेश कहाँ है? माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर पीठ का है। क्या है वो आदेश? दिखाइए। ऐसे थोड़ा ना होता है। यू कैन नॉट। ये फाइल है। कहाँ फाइल किया है बताइए? एफिडेविट में लिखा है आपने 3/6/19 का आदेश, वो कहाँ लिखा है? वो कहाँ लगाया है आपने? Who is this gentleman? एसडीओ कोलार। आपको जेल जाना है क्या यहाँ से? कहाँ है ये आदेश 3/6/19 का? सर फाइल में है सर। तो फाइल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? आप लोग मजाक समझते हैं कोर्ट को? कहाँ है आपकी फाइल? नीचे क्यों है? जेल जाना है आपको यहाँ से? Should I draw a contempt proceeding against you? सॉरी से क्या होगा? लिखिए श्री दीपक अवस्थी, learned counsel for the petitioner, Shri Manaswani Verma, learned government advocate for state, along with one Shri Ravi Shankar Rai, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू, तहसील कोलार, डिस्ट्रिक्ट भोपाल। तहसील के रेवेन्यू सब डिविजनल ऑफिसर कब से होने लगे? अनुभाग के होते हैं जी? तहसील के अनुभागीय अधिकारी कब से होने लगे? अच्छा। He has produced an order dated 3/1/2025 in which some reference is made to the order of the High Court in WP 10414 of 2018 dated 3/6/2019
but he has not enclosed copy of the said order. Full stop. On asking, he submits that said order is available in his file. However, he is not carrying his file also and submits that is downstairs. Full stop. This reflects the next paragraph. This reflects indifferent attitude of the revenue officers towards the court proceedings. Full stop. He is trying to blindfold the court by not producing the complete set of documents. Full stop. Subject to cost of rupees 25,000 to be recovered from the erring subdivisional officer and to be deposited in the High Court Legal Services Authority. Time up to 2:30 p.m. is granted to produce the complete set of the record, failing which this court may draw suo motu contempt, failing which appropriate action may be taken against the said officer. Matter be listed immediately after DV work at 2:30. 25,000 रुपए कॉस्ट जमा कराइए. हाई कोर्ट लीगल कॉस्ट में डिपॉजिटेड इन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी. ये आप लोगों ने एक मजाक समझ रखा है कोर्ट को, बिल्कुल से टाइम वेस्ट करते हैं आप. Copy of this order be sent to the chief secretary for taking action against the subdivisional officer for wasting the time of the court and not producing the complete. बताइए. We have deposited the cost, my lord. Yes, my lord. ऑर्डर दिखाइए. एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो अवैध को वैध किया था साहब. हाँ. इस माननीय आपकी डिवीजन बेंच के द्वारा उसको सर्कुलर को निरस्त कर दिया. हाँ. और सभी म्युनिसिपैलिटीज को बोला था अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट. अवैध को वैध किया था ना. अवैध को वैध किया था तो उसको क्वेश्चन कर दिया. हाँ, फिर उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज को बोला to take appropriate action. हाँ. Under section 392E जी and 292DA and 339E. जी. फिर क्या हुआ? इसमें साहब अब चूंकि वो कमिश्नर के आदेश में, एडिशनल कमिश्नर के आदेश में इस चीज का उल्लेख था, इस आदेश का. हाँ. वो उसको एक शब्द जो था साहब, इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि हमने डिवीजन बेंच में बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू रेगुलराइज द इलीगल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 308 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट. ठीक है, तो वो तो अवैध का अवैध रहा. तो फिर उससे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद में इनको कैसे मदद मिलेगी, आपको कैसे मदद मिलेगी? नहीं, मैं एफिडेविट में जैसा साहब ने एफिडेविट में तो आपने जो लिखा वो एफिडेविट में अल्ट्रा वायरस शब्द इसीलिए. अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? अल्ट्रा व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? What has been declared as ultra virus? The provision which provided for regularization of illegal construction. Once it has been declared as ultra virus, then what will be its impact? नहीं, मैं ये एफिडेविट में साहब इसलिए इसका मैंने उल्लेख कर दिया. तो ठीक है, समझ गए, लेकिन उसके अब आगे के आदेश की बात तो करें. उसके बाद से आगे चलें. उसके बाद जी साहब, उस एडिशनल कमिश्नर ने मैटर रिमांड किया एसडीओ साहब को. हाँ, एसडीओ साहब ने कैसे कर दिया उसको नियमित? उन्होंने ये कैसे लिख दिया, किस प्रावधान में लिख दिया कि इस आदेश के प्रकाश में अब वो जो है अनियमित नहीं रह जाता? नहीं है ना, उसमें लिखा ना ये दिखाइएगा, एफिडेविट दिखाइएगा. एफिडेविट के साथ एफिडेविट में एसडीओ साहब ने एसडीओ ने तहसीलदार को बोला है कि टेक कंस्टिट्यूट ए कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी है. 3 तारीख का आदेश थोड़ा पढ़िएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा. लास्ट पैरा निवेदन कर रहा हूँ. आप पढ़िएगा. प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक प्रकरण के प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभय पक्ष तर्क सवाल उपरांत मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं. जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस समय वक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के WP नंबर 700 में पारित आदेश अल्ट्रा वायरस घोषित हो गया था. ऐसी स्थिति में बाद में भूमि स्वामी के संबंध में राजस्व निरीक्षक. एक सेकंड, लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया था? इस कोर्ट ने पढ़िए ना, कहीं डिवीजन बेंच का ऑर्डर तो पढ़िए कि वो लेआउट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है. यही तो समझना चाह रहे हैं हम. निवेदन कर आपके अधिकारी. मैं एक निवेदन करूँ शब्दों में, थोड़ा सा शब्दों में नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए पिटिशनर उसका मतलब समझाइए. आपने लिखा प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं प्रकरण में
तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत मैं निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस समय उक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी में पारित आदेश से अल्ट्रा वायरस लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, ये तो बताइए थोड़ा सा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बताइए लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया। लेआउट कैसे हो गया बताइए तो। ये सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं नहीं, उसके आगे देखना चाहूँ। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट हाउ लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो सब कुछ है। तो फिर क्यों लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। You read this order. I'm granting you time till 4:30, and I'll keep this case tomorrow if the need arises. कि लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस हो गया? हो ही नहीं सकता। फिर उनसे और पूछ लीजिए क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा बताइए राय साहब। सर वो समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब, सर। जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुरोध है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करा के 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें। 3 दिन